Are we waiting for someone to start, Satyadeep? No, you can start. Okay. Okay, so good evening, everyone. Sorry? No. Okay, so good evening, everyone, and a warm welcome to all of you to this Me For You webinar. So today, I think a special welcome should also is also due to our scholars who are here, current scholars who are also in this webinar. All this while, we've always had the webinar open to alumni only, but this is a special webinar. So welcome to them and our heartiest welcome on behalf of the entire Dakshina family to you, Sujit, for taking out the time and for being here. First of all, a very, very, very heartiest congratulations for your success. We're so very proud of you. I think each one of us here and the entire Dakshina fraternity is very, very proud of your success. So, lots of congratulations to you. So Thank you. we will, yes. So should You we may start? Yes, sorry. I'm sorry to interrupt. Yes, go ahead. Thank you, Sarmila ma'am, and thank you everyone at Dakshina and Dan. Good evening, everyone. Yeah, you may continue. Okay. So, what we've done is actually we asked all the scholars and the alumni to send in their questions in advance so that we would know, what kind of questions would be there, and we would be able to kind of run this webinar in a more organized manner. So I think we will start with the questions. I think I have a list of about 20 questions, and so we have just an hour to go through this. So we'll try and cover all of them. But what I'd like to inform the audience is that if any of your questions remain unanswered, please don't worry because with Sujit's permission, we will share his email address at the end of the program so that you could write to him directly and he would be able to answer. I hope that is okay with you, Sujit. Yes, ma'am, that is fine with me. Wonderful. All right. So I think the most common question and the most topmost question in all our minds is tell us about yourself. Tell us about your journey from the Odisha village to the JNB, then to Dakshina, then to IIT, and then to your work, and the entire journey. So we'd like you to tell us about that. Incidentally, I just want to tell everyone that I think Sujit and I joined Dakshina at the same time, in the same year. So I joined Dakshina in 2010, and Sujit became a Dakshina scholar also in 2010, right? And I remember Yes. my visits to JNV Rangareddy, where I used to meet Sujit every time I went. And we had some fun times, right? So I still remember Yes, those days when Sujit was still in a classroom as a Dakshina scholar, just like some of you have been, and most of you have been, and some of you are still, right? So, yes, Sujit, go ahead. Thank you. Hello everyone once again. Thank you, Dakshina and Dan, for giving me this opportunity to interact with Dan members and guide them in their career path. So my name is Sujit Pradhan. I was born in Bargarh district of Odisha. My parent JNB is JNB Sambalpur in Odisha. Then I was part of Dakshina class of 2012 at JNB Rangareddy. From there, I enrolled in IIT Kharagpur in civil engineering department where I did my BTech there. So then I got placed at CRISIL Limited where I worked for nearly 2 years. And
after that, I pursued MSc in Applied Statistics and Informatics from IIT Bombay. So I post-graduated from IIT Bombay in 2020, and in that year I appeared for Indian Statistical Service or ISS examination, and I succeeded with All India rank 7 in that, the result of which was published last month only in on July 30th. So this is my brief introduction. Okay, that's great. Thank you. And I remember when I had met you in IIT Bombay while you were doing your master's, and I had asked you, what do you want to do? You know, what's your plan? And you were very clear even then, right, that you definitely wanted to do your UPSC. So, what is, I think, you know, some of us may want to know, what is the UPSC ISS? And like, what is the eligibility criteria, and how different is it from an IAS? So if it is fine with everyone, then I can continue in mostly in Hindi, because Yes. that way Yes. it would be better to interact Yes, with please. the audience. Yeah, absolutely. Okay, so यूपीएससी जो जनरली लोग मानते हैं, यूपीएससी एग्जाम बोलते हैं, बट एक्चुअली यूपीएससी एक रिक्रूटिंग बॉडी है, रिक्रूटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो ग्रुप ए सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है ऑल इंडिया लेवल पे। तो जो यूपीएससी एग्जाम बोलते हैं, दैट इज कॉमनली नोन एज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसे पास करने के बाद आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब वगैरह बन सकते हैं। उसके अलावा यूपीएससी एग्जाम्स में अलग अलग तरह के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईएसएस हो गया, जिसे मैंने क्वालिफाई किया है। उसके अलावा होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस होता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस होता है, उसके बारे में काफी लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा। और फिर होता है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। इसके अलावा काफी सारे अलग अलग भी होते हैं। एनडीए का होता है, कंबाइंड डिफेंस होता है, कंबाइंड मेडिकल होता है। तो काफी सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। तो अभी मैं आईएसएस एग्जाम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, आपको 21 साल होना चाहिए। तो 2022 का जो एग्जाम होगा वो 24 टू 26 जून होगा 2022। तो उसके लिए आपको 21 साल का होना चाहिए, 21 इयर्स। तो यू शुड बी बॉर्न बिफोर 1 अगस्त 2001। मतलब जो कट ऑफ डेट होता है वो 1 अगस्त होता है, और मैक्सिमम एज जो होता है वो 30 इयर्स होता है। 30 इयर्स मतलब आपको यू शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 1992। और ये क्वालिफिकेशन जो है वो सेम फॉर एवरी यूपीएससी एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज हो गया, या जो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, कुछ बाकी जो है। इसके अलावा जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आईएसएस का, इसलिए उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है कि यू शुड हैव स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट। मतलब जो कैंडिडेट्स आईआईटीज या एनआईटीज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो लोग भी अपियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे 3rd सेम में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट थी। तो वो अपियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो आईएसएस 2020 बैच के रैंक 3 जो है, वो लक्ष्मी नारायण वर्मा, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। उसने आईआईटी खड़गपुर से इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। उसके बाद जॉब के टाइम ही उसने अपियर किया था, एंड ही सक्सेसफुली क्लियर्ड द एग्जाम। सो ये रहा आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया। yeah. Okay. So मुझे एक बताओ कि एक क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा कि बाद
यानी ऐसा है क्या कि अगर बीटेक कर मैम आपकी वॉइस रुक रुक के आ रही। सकते, इसका कोई रिलेशन है क्या? और मैम इसी में मतलब व्हाट वाज योर मोटिवेशन बेसिकली? मैम क्वेश्चन I couldn't get some part. Sorry, was I audible to you? No, ma'am, there was some problem with the अच्छा, mic. repeat. Yeah, I think I'll repeat the question. तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जा रहा है कि यूपीएससी आईआईटी के बाद क्यों, राइट? तो मतलब क्या बीटेक होने का कोई फायदा होता है यूपीएससी की एग्जाम में? और ऐसा भी हो सकता है कि जेई में सक्सेसफुल हैं तो यूपीएससी में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो इफ यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट दैट। हाँ, तो एक्चुअली में जो है यूपीएससी में आईआईटीएंस का सेपरेट लाइक आईआईटी टेक का उतना ये नहीं है, बट एच ए कैंडिडेट मतलब आईआईटीएंस जो होते हैं जो लॉजिकली दे आर सुपीरियर देन अदर्स, मतलब लॉजिकल थिंकिंग में, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। तो हमारे आपने कई बार देखा होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉप 25 में 5 से 10 आईआईटीएंस होते हैं। तो इसके अलावा हमारे आईएसएस में भी जो है हमारे पेपर 1 पेपर 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इन दोनों पेपर्स में हमारे, क्योंकि मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस था, आई स्टार्टेड सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम 2010, तो वो काफी हेल्पफुल रहा मुझे। एंड आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइंड। और वो प्रोबेबली आपका जो एग्जाम मतलब 2016 में ऑब्जेक्टिव पेपर्स इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद मतलब तभी से का हाईएस्ट स्कोर कह सकते हैं आप। तो जो आईएसएस का यही एडवांटेज है कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर्स में काफी स्कोर कर सकते हैं। और वो इवन आप पेपर 3 पेपर 4 में मेरा थोड़ा खराब गया था, स्टिल आई गॉट ए सिंगल डिजिट रैंक। तो वो जो आपका प्रिपरेशन मतलब जो एक्सपीरियंस था सॉल्विंग एमसीक्यू क्वेश्चंस, दैट हेल्प्ड मी ए लॉट। उसके अलावा आपका यूपीएससी एग्जाम्स में, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं, मतलब जो नॉट कि आपको सिर्फ मतलब रटने वाले क्वेश्चंस आजकल बहुत कम आते हैं। तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, जो कि उस एरिया में आईआईटीएंस एनआईटीएंस का काफी मतलब एडवांटेज रहता है। तो आई थिंक आईआईटीएंस को यूपीएससी क्रैक करने में विथ रेस्पेक्ट टू अदर कैंडिडेट्स थोड़ा इजी हो सकता है, बट आपको इसके लिए हार्डवर्क की जरूरत होती है, हार्डवर्क, और फिर आपको पेशेंस की भी जरूरत होती है काफी, क्योंकि जो फास्ट अटेम्प्ट में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसके। तो अगर फास्ट अटेम्प्ट में नहीं भी हुआ है तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको फिर रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब पेशेंस नहीं ये करना चाहिए, परसिवियरेंस भी होना चाहिए कि आपको जो जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, क्योंकि ये जो है लेंदी प्रोसेस होता है यूपीएससी का। जो हमारे रिटन एग्जाम अक्टूबर में हुआ था, देन आर इंटरव्यू वाज इन जुलाई, तो जो लगभग 1 साल वाला प्रोसेस होता है। तो आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए इसके लिए। तो थोड़ा एक्स्ट्रा जो है, हेलो या हाँ, तो एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, बट आईआईटीएंस क्लियर कर सकते हैं, मतलब विद रेस्पेक्ट टू अदर कैंडिडेट्स आई वुड से it is somewhat easier for them. So we would like to know more about your preparation and all that. पर उससे पहले we want to know what was your motivation इस एग्जाम को देने के लिए? What was your main motivation? ओके, तो मेरा जो ये है, पहले तो सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, उसके बाद फाइनेंस में जॉब था।
और फिर मैंने स्टैटिस्टिक्स किया। तो इसके बारे में काफी लोग पूछते हैं मुझे कि ये ट्रांजिशन कैसे, मतलब सिविल इंजीनियरिंग पूरा अलग है, फिर फाइनेंस अलग है, देन आपका स्टैटिस्टिक्स भी अलग है। तो इसका यह है कि पहले मतलब जब मैं आईआईटी खड़गपुर में था तो तब तक मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो भी फोकस ऑन माय स्टडी एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज अलोंग द वे। तो और आईआईटी खड़गपुर में ऐसा हुआ कि कोर कंपनीज काफी कम आए। तो उस टाइम भी मेरा उतना ये मतलब क्लियर कट आइडिया नहीं था, मतलब फ्यूचर में क्या करना है ये। तो मैंने जो प्लेसमेंट्स में बैठा और मेरा क्रिसिल लिमिटेड में हो गया, प्लेसमेंट हो गया। तो जब मैं क्रिसिल में गया तब मैंने मेरे करियर के बारे में मतलब अच्छे से सोचा, लगभग 1-2 महीने का टाइम भी दिया सफिशिएंटली। तो मेरे काफी सारे 4-5 ऑप्शंस थे। एक तो था मतलब फाइनेंस जॉब कंटिन्यू करना, दूसरा था सिविल इंजीनियरिंग में एमएस, मतलब एमएस के लिए फॉरेन जा सकता हूँ। तीसरा घर वाले बोल रहे थे मतलब सिविल सर्विसेज में अपेयर करने के लिए, और एक था आपका पीएसयूज में ज्वाइन करने के लिए। और फिफ्थ जो था वो मेरा खुद का ये था कि मैं चूंकि मेरा ये मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में काफी इंटरेस्ट था, तो मैंने मतलब सोचा था कि चलो उसमें कुछ हायर स्टडीज कर लूं। तो तब मैंने आईआईटी जेम अपेयर किया और आईआईटी बॉम्बे में अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स में आ गया। और तब आने के बाद मुझे लगा नहीं, मतलब वापस कॉर्पोरेट में जाने का उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा। तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड कर लिया कि मैं इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में नहीं बैठने वाला। तो मैंने इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई नहीं किया था, और प्लेसमेंट का तो टोटली नहीं, क्योंकि मैंने जो आईआईटी खड़गपुर में थोड़ा जो ये था ना कि मैंने डिसाइड नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं पूरा श्योर था कि नहीं, मुझे इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में ही जाना है। तो वो पूरा श्योर हो गया था। तो सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में आईआईटी बॉम्बे में मैंने सब मटेरियल्स गैदर किए आईएसएस के बारे में और टॉपर्स के बारे में पढ़ा, उनके टिप्स लिए, फिर जो जो चाहिए उसके एग्जाम्स के बारे में जानना चाहे था वो सब गैदर किया। इवन हमारे आईआईटी बॉम्बे के सीनियर जो एक आईएसएस ऑफिसर हैं उनसे भी बात की, उनसे टिप्स ली। और फाइनली जब फोर्थ सेमेस्टर में जनवरी से मार्च तक मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सेमेस्टर चल रहा था। तो आई वॉज एबल टू स्टडी फॉर 2-3 आवर्स डे, और वीकेंड में 5-6 घंटे पढ़ता था। तो फिर जब मार्च 2020 में कोविड-19 की वजह से हमें घर वापस आना पड़ा। तो उसी टाइम फिर अप्रैल मई में मतलब मैंने तो वो पढ़ाई कंटिन्यू की थी। और वैसे जब मैं फोर्थ सेम में था, मैं सोचा था चलो मतलब ऐसे, क्योंकि जो एग्जाम होता है जून में होता है, तो मैंने सोचा था कि चलो इस बार ऐसे अपेयर कर लेते हैं। लेकिन जब कोविड की वजह से घर आया तब पता चल गया था कि एग्जाम जो होगा सितंबर अक्टूबर में होगा। तो आई हैड एक्स्ट्रा 3 मंथ्स। तो मैंने डिसाइड, और फिर नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा थे, 47 जनरली 30-32 होते हैं। तो मैंने सोचा दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मुझे पूरा अपना जितना मतलब पूरा फुल फोकस देना है, एक्स्ट्रा 3 महीना है। तो मैंने घर बैठे बैठे जो मटेरियल्स तो ऑलमोस्ट मेरे पास थे, और जो भी टिप्स वगैरह थे वो तो ऑनलाइन अवेलेबल थे। तो मैंने घर बैठे बैठे मतलब पढ़ाई की, अप्रैल मई में 5-6 आवर्स, फिर हर महीने 1-1 घंटा बढ़ा बढ़ा के, जो हमारा एग्जाम था अक्टूबर में, तो मैंने सितंबर अक्टूबर में 9-10 घंटे पढ़ाई किया था, तो मतलब दिन में। और जो रूटीन था मेरा, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि रिजिड रूटीन बना देते हैं, जैसे कि आपका 7 बजे उठना है, 5 मिनट लेट भी हो गया तो थोड़ा ये हो जाता है। देन आपका 7:30 to 8:30 पढ़ना है, मतलब 1 आवर स्ट्रिक्ट होता है। उसी टाइप का आप मत कीजिए,
ऐसा करो कि आप लंच से पहले 3-4 घंटा पढ़ना है, वो ये हो सकता है थोड़ा 15-20 मिनट इधर उधर हो सकता है। फिर आपका जो लंच से स्नैक्स के बीच में 3 घंटे के करीब पढ़ सकते हैं, फिर डिनर के बाद 2 घंटे पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप दिन में 8-9 घंटा पढ़ सकते हैं। और जो टाइमिंग है वो फिक्स मत कीजिए कि मुझे 10 से 11 ही पढ़ना है, वो थोड़ा इधर उधर होने से भी चलेगा। और हर दिन अलग अलग होता है, मतलब आप डिपेंडिंग ऑन मतलब आपके मूड पे भी डिपेंड करता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं आज थोड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या अभी थोड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तब आपको जो अच्छा लगता है, जैसे मुझे गाने सुनने में अच्छे लगते हैं, और फिर नॉवेल्स पढ़ने में अच्छे लगते हैं, फिक्शन बुक्स, और या मतलब कभी कभी मैं सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ता हूँ मोटिवेट रहने के लिए। तो ये जो होता है, ये आप 15-20 मतलब आधा घंटा टाइम ले सकते हैं। और फिर आप आपको जब लगे कि अभी पढ़ने का मूड है, तो आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हाँ, तो ये जो है इसी तरह का मेरा प्रिपरेशन था मेनली। हाँ, हेलो। Yes, coming. Voice is coming. We can hear you. आपका microphone off है. Please continue. ओके। सो यही मेरा मेनली जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था, और जो मतलब स्टार्टिंग से वही मटेरियल से सब के बारे में बेसिकली ये था। तो ये सब प्रिपरेशन करते समय एक्चुअली किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय ऐसे फेजेस आते हैं जब हम थोड़ा सा डीमोटिवेटेड होते हैं, या थोड़ा वी फील अ लिटिल नॉट अप टू इट। तो आप जब ये कर रहे थे, तो आपको भी ऐसे कभी फीलिंग्स आई थी, और आपने इसको कैसे ओवरकम किया? हाँ, ये तो मतलब काफी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये फेज तो आती है जनरली, और यूपीएससी एग्जाम्स में तो ये मतलब बहुत बार आती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है स्टार्टिंग से एंड तक लगभग 1-1.5 साल के होते हैं। तो बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। Someone is muting me. Yeah. Okay. Satyajit? Pankaj, can we request you to switch off your video, please? Yeah, thank you. Yes, Sudhi, go ahead. हाँ, तो ये जो मतलब काफी ऐसे टाइम आते हैं कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, या किसी दिन थोड़ा मतलब उठने के बाद लगा कि नहीं आज तो मतलब यू डोंट नो कैसा हो रहा है, मतलब ऐसे ही अच्छा नहीं लगता है। तब आप एक ऐसा कर सकते हैं कि मैं ये ऐसा करता था कि गाने सुनता था, या कोई एक कॉमेडी शो देखता था, मतलब खुद को रिवैम्प करने के लिए। और डेली में मेडिटेट करता हूँ। सो इवन आफ्टर द रिजल्ट्स आई मेडिटेट फॉर 15 मिनट्स ए डे। तो मेडिटेट करने पे ये होता है कि आप जो लास्ट 24 आवर्स में क्या क्या किए, कौन कौन से एरिया में इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब के बारे में सोचते हैं। और फिर आप जो नेक्स्ट 24 आवर्स है उसका भी थोड़ा बहुत प्लान बन जाता है। और जितने भी ये होते हैं अनएक्सप्लेन्ड जो मूड्स होते हैं, वो मतलब एक बार आप मेडिटेट कर लिए तो वो सब दिमाग में नहीं आते हैं। आप थोड़ा शांत मन से सोच सकते हैं ये सब के बारे में। इसके अलावा जो है मेरा पढ़ने का स्ट्रेटेजी ऐसा था कि आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 50 मिनट्स, और उसके बाद 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेता था।
मतलब 50+10 वाला जो था, तो वो जो 10-15 मिनट था, जनरली मैं नोवेल या फिक्शन पढ़ता था इस सब के बारे में, ताकि वो थोड़ा ब्रेक मिल जाए। वो पढ़ाई जो है ना आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी मतलब वो नहीं तो मोनोटोनस टाइप का होता है, उसका थोड़ा रिलैक्स्ड टाइप का होना चाहिए। और फिर मेरा ये था कि मैं फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी टाइम देता था। मतलब मैं गांव में था तो मैं वो क्रिकेट खेलने भी चला जाता था, मतलब 1 घंटे के लिए। तो वो ऐसा मतलब मेरा जो रूटीन था वो मोस्टली ऐसा था कि पढ़ाई भी 8 आवर्स के करीब हो रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रहा है। फिर आपका जो सोशल मीडिया का ये जो है ना, उसके लिए मैंने स्पेसिफिक इवनिंग में 30 मिनट्स अलॉट किया था। मतलब पढ़ाई के टाइम में मैंने मोबाइल का जो है नोटिफिकेशन या डेटा पैक पूरा ऑफ कर लिया था। सिर्फ आपका जो 6 to 6:30 जो इवनिंग टाइम में है, उसी टाइम मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहता था। तो ये काफी जो मेरा ये था, तो ये सब मैंने सक्सेसफुली ये किया, मतलब इम्प्लीमेंट किया। काफी लोगों को मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है इन सब चीजों में, लेकिन आई थिंक मैंने काफी अच्छे से किया, और उसी वजह से मेरी बाकी सब स्ट्रेटेजी भी काफी सही रहे एग्जाम के लिए। हम काफी हमारे एलाइंस जो भी IITs और NITs में हैं, वो चाहते हैं कि UPSC के लिए तैयारी करें। तो वो उनका एक क्वेश्चन है कि जब हम IIT या NIT में होते हैं तो हमने कैसे शुरू करना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन, और किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, UPSC को या BTech को? और फिर मतलब उसी को लग के 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैं कंबाइन कर लूंगी। तो फिर जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो किसको कैसे मैनेज करें, सेमेस्टर एग्जाम्स या प्लेसमेंट्स? सो मतलब क्या, व्हाट वुड यू एडवाइस देम, कैसे कैसे करना चाहिए? अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो यू वुड बी अराउंड 17 टू मतलब अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आपका जो ये होता है यूपीएससी का मिनिमम एज तो 21 ईयर्स होता है। तब आपको सिर्फ कॉलेज में ही फोकस करना है, कॉलेज की स्टडी के लिए। आप अपना सीजीपीए जितना अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं उतना सही रहेगा आपको। और इसलिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप पूरा कॉलेज लाइफ पे ही पूरा फोकस करें। और थर्ड ईयर में अगर आपको लगता है कि आपको यूपीएससी में ही जाना है, देन आप मतलब वीकडेज में 3 घंटे के करीब दे सकते हैं। मतलब मंडे टू फ्राइडे जो है आपका 3 घंटा इजीली दे सकते हैं। मतलब आपका पढ़ाई के साथ साथ भी देख सकते हैं, और वीकेंड्स में 6 से 7 घंटा देख सकते हैं। तो आपका थर्ड ईयर में इंटर्नशिप भी आता है। तो आप बेसिकली जब आप कॉलेज में हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आपका सीजीपीए इम्प्रूव करने में और आपका रेज्यूमे बिल्डअप करने में लगाइए। क्योंकि बाद में जो ये होता है ना कि अगर आपका सीजीपीए 8+ है, देन यू वुड हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज। आप फॉरेन में एमएस कर सकते हैं, आपको मतलब कभी भी जॉब चाहिए ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, तो उसके लिए आपको मतलब डर नहीं लगता है। और डर नहीं लगने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफी सही रहता है। जैसे मेरा हर बार मतलब सीजीपीए 8+ रहा है, तो और मेरा रिज्यूमे भी काफी स्ट्रांग था। तो मैंने आईएसएस का ये जो दिया था, तो मेरा एक ऑलरेडी क्वेश्चन टाइप का था कि इवन इफ मेरा आईएसएस में नहीं हुआ तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैंने मुझे कोई एक अच्छा सा एनालिस्ट जॉब मिल जाएगा। उसके लिए कोई मतलब कोई डर या वो फियर फैक्टर नहीं होता है। तो आपका जो थर्ड फोर्थ ईयर में है तब भी आप कॉलेज लाइफ पे फोकस करिए। थोड़ा बहुत मतलब आप
अगर आपको यूपीएससी में ही जाना है, आप श्योर हो, तो आप उसको भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हैं उसके लिए। बट ट्राई टू कीप योर सीजीपीए अबव 7, मतलब 8 से ऊपर तो ठीक है, अगर नहीं भी हो पाया तो कीप इट अबव 7.5। वो 7.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी का जो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं कंपनीज, उनका ये रहता है यू शुड हैव मिनिमम 7.5 सीजीपीए, कई का 8 भी होता है। तो जब आप कॉलेज में हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी इम्प्रूविंग योर सीजीपीए एंड मेकिंग योर resume strong. Okay, let us talk a little bit about the actual UPSC ki tayari. So one of the things that people were wondering is, how do you choose the subject for UPSC? What kind of books and coaching classes would you recommend? And there was also one question about कि क्या हम ये इस तैयारी को कोचिंग के बिना भी कर सकते हैं? Okay, so by UPSC mean civil service examination, I think you are talking about, जो कि मतलब it is predominantly known as, हाँ। तो ये जो है आपका यूपीएससी में जो पैटर्न होता है, तो ये आपका 3 स्टेज होता है, आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड आपका इंटरव्यू होता है। मेंस में आपके 4 तो जनरल स्टडीज पेपर जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, उसके अलावा ऐसे होता है, और उसके अलावा क्वालिफाइंग 2 होते हैं, एक लैंग्वेज पेपर एंड अनदर वन इज इंग्लिश। तो उसके अलावा एक ऑप्शनल मतलब 2 ऑप्शनल पेपर होता है, एंड यू शुड सिलेक्ट ओनली 1 पेपर। मतलब आप मैथमेटिक्स सिलेक्ट किए तो आपको उसका 2 पेपर अपेयर करना पड़ेगा, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 250 मार्क्स। और काफी सारे होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, या ज्योग्राफी हो गया, काफी सारे हैं। तो जनरली ऑप्शनल मतलब टोटल मार्क्स जो होता है 20,000 मतलब 20,125 होता है, उसमें से आपका ऑप्शनल 500 मार्क होता है। तो ऑप्शनल में आपका अच्छा मार्क्स आ जाए तो वो काफी हेल्पफुल रहता है आपका रैंक और केडर डिसाइड करने में। तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट चूज करने हैं, वो एक तो होना चाहिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और उसमें आपका नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ ट्रेंड फॉलो करके ही वो पढ़ाई कर रहे हो, देन वो उतना फायदेमंद नहीं होने वाला है। उसके अलावा और एक भी आप ट्रेंड्स एक बार देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कितने लोग अपियर कर रहे हैं। अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर अपियरिंग फॉर दैट पेपर, मतलब सफिशिएंट नंबर वो डिपेंड ऑन कितना 100-200 जितना भी है, तो अगर उतने बंदे ये करते हैं तो आपका जो स्केलिंग होता है एक्चुअली में आपका ऑप्शनल पेपर में, तो अगर आप बाकी लोगों से काफी सही किए हैं तो आपका स्कोर काफी सही रहता है। और अगर आप वो सब्जेक्ट चूज किए जिसमें काफी कम लोग अपियर करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि इवन दो आपका काफी सही हुआ है तो यू मे गेट लेस मार्क्स देन यू आर एक्सपेक्टिंग। और अगर आपका खराब गया है तो वो तो खराब हो ही जाता है। तो ऑप्शनल का जो सिलेक्शन, ये 3 मेन क्राइटेरियन है, मतलब मेन क्राइटेरिया है। एक तो हो गया आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और उसमें आपका सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, और तीसरा यह है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उस पेपर को अपियर करना चाहिए। हाँ, अब हम बुक्स के बारे में बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। तो पहले तो ये होता है, प्राइमरी जब कोई भी स्टार्ट करता है पहले तो एनसीईआरटी बुक्स से स्टार्ट करते हैं। आपका हिस्ट्री क्लास 6 to 10 ओल्ड एनसीईआरटी,
ज्योग्राफी के लिए आपका क्लास 6 to 10 बोथ न्यू एज वेल एज ओल्ड एनसीईआरटी। फिर आपका इकोनॉमिक्स के लिए जो 9 to 12 मतलब 8 या 9 से स्टार्ट होता है, तो जब से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स का बुक तब से आप वो एनसीईआरटी बुक्स फॉलो कीजिए। और पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत होता है, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, वो काफी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा आप एक बार ये जो प्राइमरी बुक्स हैं वो खत्म करने के बाद आप हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र के मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र के बुक्स फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो काफी मतलब क्योंकि मेरा जो एग्जामिनेशन है आईएसएस एग्जामिनेशन वो थोड़ा अलग है, तो मैं इतना बता सकता हूँ इन सब के बारे में। इसके अलावा अगर आप मतलब जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी सक्सेसफुल हुए हैं, उनसे अगर बात करें तो वो और बेटर आइडिया मतलब और बेटर गाइड कर सकते हैं आपको। और वो ये मतलब मेरे हिसाब से ये जो मतलब सिविल सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स ये सब वगैरह हैं। थैंक यू। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आई थिंक हमारे करंट स्कॉलर्स के लिए काफी यूजफुल होगा कि आपने नोट्स कैसे बनाए और आप मेमोराइज कैसे करते थे, लाइक हाँ सॉरी मैंने वो एक कोचिंग वाला भी एक लास्ट क्वेश्चन मिस कर लिया था, तो ये है। हाँ तो आपका जो आजकल ऑनलाइन काफी सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो कोचिंग मतलब मैंडेटरी नहीं है, इट इज अप टू यू। मतलब वो उतना मतलब क्रूशियल नहीं है आपके प्रिपरेशन में। और काफी सारे अभी जैसे अनअकैडमी हो गए या और एक दो ऐसे हो गए मतलब एक दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो फ्री के वीडियोज और मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, वो तो आप उन सब का यूटिलाइज कीजिए जो जो फ्री मिल रहा है। और फिर आपको अगर मतलब और एक मेंटर होना चाहिए आपको कि गाइड करे आपको आपका यूपीएससी एग्जाम में। जैसे कि मेरा ये था कि पेपर 3-4 में अगर मेरा कोई एक मेंटर होता ये तो और बेटर स्कोर कर सकता था मैं। तो आपको एक गाइड या मेंटर होना चाहिए जिससे पता हो मतलब एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से पता हो, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। और कोचिंग एज सच बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आप वो डिपेंड करता है कि आप ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। और हाँ आप मैं नोट मेकिंग के बारे में ये थोड़ा बताता हूँ। तो कोई भी यूपीएससी एग्जाम है तो आप नोट अच्छे से मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं मतलब इफ यू आर ओनली स्टडिंग एंड नॉट राइटिंग एनीथिंग, तो जितना रिटन होता है उससे ज्यादा आपको उससे लगभग 10 टाइम्स ज्यादा रिटर्न होता है अगर आप नोट राइट कर लें। या ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि फास्ट मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ने में याद नहीं रहता या समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार नोट में लिख दीजिए, फिर सेकेंड टाइम जब आप वो गो थ्रू कर रहे हैं तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है उसके बारे में। तो नोट मेकिंग काफी हेल्पफुल रहता है। और नोट मेकिंग करने का तरीका ये है कि आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री में यू आर स्टडिंग अबाउट अकबर, अकबर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो आप अकबर का जो है पूरा चैप्टर पढ़ लिए या जो 3-4 पेज पढ़ लिए, उसके बाद आप खुद का एक नोट बनाइए, ठीक है। मतलब आप जितना भी मतलब समरी नोट्स बनाइए उसका। वो फर्स्ट टाइम के लिए आप
बुक को वापस रेफर कर सकते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा पूरा याद तो नहीं रहेगा, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए आप फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वापस आप अगर बुक में जाके ढूंढेंगे तो वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसके अलावा काफी सारे ऐसे प्रूफ्स के ये जो होते हैं स्टेटमेंट्स होते हैं, थ्योरम के स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सब भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सब ऐसा होता है कि आपका क्विक ग्लांस जो मतलब आप लास्ट टाइम मतलब एग्जाम के पास आपको जब रिवीजन करना होता है तो वो काफी हेल्पफुल रहता है ये सब, क्योंकि आप मतलब लास्ट एग्जाम के 5 दिन पहले फिर बुक रेफर करेंगे तो वो काफी टाइम लग जाता है आपको, मतलब प्रॉपर टॉपिक ढूंढने में, प्रॉपर समरी निकालने में। तो इन सब चीजों में नोट मेकिंग काफी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो है आपका यूपीएससी एग्जाम्स में राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब आपका 3 घंटे में बहुत स्पीड लिखना होता है। तो जो अगर आप नोट मेकिंग करोगे तो आपका वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाता है, और वो भी काफी हेल्पफुल रहता है उसी वजह से। तो आई वुड रिकमेंड you to note makes while preparation. Wonderful. Now, another question which is very common amongst all of our scholars, alums, I'm sure you also went through this. Okay, how do you deal with anxiety during exam? तो ये मैंने पहले ही प्लेसमेंट में नहीं बैठा था। आईआईटी बॉम्बे, मतलब आईआईटी बॉम्बे जो कि दी टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, और उसमें हमारे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स में भी जो प्लेसमेंट का ये स्टैटिस्टिक्स है काफी सही है। मतलब मेरे जो सभी क्लासमेट्स हैं जितनों ने प्लेसमेंट्स में बैठा था ऑलमोस्ट सभी का हो गया था। तो और उसी टाइम में जो है वो सब छोड़ के मैं ये सेपरेट खुद गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, आईएसएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो काफी टाइम ऐसा लगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं अगर चाहूँ तो काफी बेटर पैकेजेस पा सकता हूँ, दैट टू क्वाइट इजीली। तो इसके लिए काफी विल पावर चाहिए था मेरा कि नहीं, मुझे तो आईएसएस ही करना है, क्योंकि मुझे जो कॉर्पोरेट में एक बार गया था तो उसमें जो वर्क एनवायरनमेंट, मतलब मुझे लगा कि मैं कॉर्पोरेट के लिए ज्यादा सूटेड नहीं हूँ, तो मैंने ठान ली थी कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है, मतलब और यूपीएससी वाले एग्जाम में ही बैठना है। तो ये तो एक था। और उसके अलावा जो ये होता है कि आपका काफी, आपका रूममेट हो गया या जो आपके साथ जो जो पढ़ाई करते हैं वो काफी टाइम मतलब ना चाहते हुए भी आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। तो आप उनका जो भी सुनना है तो सिलेक्टिव ये करें, क्योंकि वो आप अगर डिमोटिवेशन वाले बात कर रहे हैं तो आप वो सब उनसे मतलब मत सुनिए, वो आप इग्नोर कर दीजिए। और कई लोग ऐसा करते हैं कि प्रिपरेशन के बीच में फिर टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं वो, क्योंकि जो टॉपर स्ट्रेटेजी वाला फॉलो करने का ये होता है ना, वो काफी ये रहता है, मतलब नॉर्मल कैंडिडेट के लिए काफी लाइक यू शुड नॉट फॉलो देम, मतलब वो जैसे जैसे बोल रहे हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं फॉलो करना है। आप उनका टॉक्स सुनिए, जो जो आपको लगे कि हाँ हाँ ये मेरे लिए सुइटेबल रहेगा, ये इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, तो आप वो सब कीजिए। और बीच में मतलब आपका अगर ये आ गया, डिमोटिवेशन आ गया, तो मतलब या ऐसा लगे कि नहीं हो पाएगा, तो आप कोई एक मोटिवेशनल वीडियो मतलब देख सकते हैं, या आपका जो जो अच्छा लगता है, जैसे कि आपका
कॉमेडी कॉमेडी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, या फिर आपका मतलब 15 दिन में एक दो दिन के मतलब एक दिन के लिए आप ट्रिप पे निकल गए, पास के कहीं ट्रेकिंग पे निकल गए, तो फिर आप ये सब मतलब ये आप ट्रिप पे आ गए तो आपको एनर्जाइज होने तक आप ये कर लिए, मतलब ट्रिप पे रहे। और जब आप दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तब आपका ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब आप डिमोटिवेटेड हो। मतलब आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका फुल फोकस होना चाहिए उसमें। यह है तो एंजाइटी आने के चांसेस कम है मतलब इन सब में। ओके, तो इसी को लेके एक क्वेश्चन था कि आई कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ माय मोबाइल. I plan a lot, but I fail at implementing my study plan. So, what is your suggestion to overcome this, and how to stay focused and prepare in this? आपने काफी चीजें इसमें बता दी है, but I think this question needs a little more answer. Okay, so mobile ka hello. Yes. Someone else was saying. Okay. Yeah. So mobile. Please may I request everyone else to mute your phones. Mute yourself. Prashant. Sir, can you mute everyone except Sujit, please? Okay. Thank you. तो जब आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मोबाइल बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप मोबाइल में लग गए, मतलब जो आप 1 घंटा पढ़ लिए, फिर जो ब्रेक का टाइम है उसी टाइम मोबाइल देखने में लग गए, फिर आपका 5 मिनट एक्चुअली 5 मिनट टाइम स्पेंड करना था, लेकिन पता चल गया कि आप मोबाइल देखे देखे आधा घंटा या पौना घंटा या इवन 1 घंटा टाइम ले लिए। तो इन सब के लिए आपको तो एक तो है कि एक स्पेशल टाइम अलॉट करना चाहिए इन सब के लिए। इवनिंग टाइम हो गया या आपका जस्ट आफ्टर डिनर आपका 30 to 45 मिनट्स सेपरेट अलॉट कर सकते हैं उसके लिए। और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं मतलब व्हेन यू आर मतलब स्टडिंग, तो आप मोबाइल का डेटा पैक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको इंटरनेट से कुछ चाहिए हो तब तो डेटा पैक तो ऑन करना पड़ेगा। तब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जो भी हैं नोटिफिकेशन बंद कर दो। तब आप तो पहले तो स्टार्टिंग में 5-10 दिन तो लगेंगे इन सबको मतलब लाइन में आने के लिए, तो लेकिन आपका ये थोड़ा कि नहीं मुझे ये करना है, ये जो स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए इन सब चीजों में। और आई वुड सजेस्ट कि आप जो मतलब 30 to 45 मिनट्स होता है वो स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के लिए अलॉट करें, ताकि आपको जो बाकी टाइम में मतलब मोबाइल देखने की जो ये होती है मतलब इच्छा ना हो उतना, मतलब उतना ज्यादा क्या बोलते हैं कि मन ना करे। आप बता सकते हैं, डेफर कर सकते हैं, लाइक अभी देखने का मन कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं नहीं मैंने इसका टाइम अलॉट किया है, मैंने मुझे शाम को इसका मतलब मोबाइल में कुछ भी वीडियो या जो भी देखना है वो मैं शाम को कर सकता हूँ। Okay, great. Thanks so much. I think we just have time for about 2-3 questions more. एक तो हम जानना चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा? ओके, हाँ, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 20th जुलाई को था, 20th जुलाई 2021 को, एंड इट वाज कंडक्टेड एट यूपीएससी भवन न्यू दिल्ली। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो सेकेंड हाफ में था, सो फ्रॉम 2 to 5। तो उसके लिए हमें 1 बजे अंदर जाने दिया यूपीएससी भवन में।
तो पहले जब हम अंदर गए तो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर देन टीए ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए जो वेरिफिकेशन ये सब वगैरह हुआ, वो 1 से 2 बजे तक चला। फिर जब और 2 बजे से आपका स्टार्ट हो गया, ये इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हो गया। और मीनवाइल 1 से 2 बजे के बीच उन्होंने, मतलब यूपीएससी वालों ने सेपरेट हमें मास्क, फेस शील्ड, ग्लोव्स एंड सैनिटाइजर ये सब वगैरह दिया था। ये स्पेसिफिकली फॉर कोविड-19, उसकी वजह से। और जब और हमारे जो 2 to 5 होता है, तो उसमें 6 कैंडिडेट्स का एक होता है, मतलब एक पैनल में 6 लोगों का इंटरव्यू होता है, और टोटल 3 पैनल्स थे हमारे, तो 6 into 3 18, टोटल एक सेशन में 18 इंटरव्यूज होते थे। तो मेरा जो था वो सेकंड था, हमारे 6 लोगों में से मेरा सेकंड था। तो जो फर्स्ट कैंडिडेट गए थी उसका तो 2 बजे से स्टार्ट हो गया था, और लगभग हमारे 15 से 20 मिनट चलता है। तो 2:15 बजे के करीब 2:15 के आसपास मुझे, मतलब जो इंटरव्यू हॉल जो है उधर बुलाया गया मुझे, और फिर मैं उधर 5 मिनट के करीब वेट किया। तब उन्होंने बोला, मतलब तब वो पहले वाली कैंडिडेट का हो गया। तब मैं, मतलब मास्क और फेस शील्ड, ग्लोव्स ये सब लगाए हुए अंदर गया। फिर तो मेरे में 4 ये थे पैनल मेंबर्स, 4 थे, 2 सर थे और 2 मैडम्स थे, और जो चेयरमैन थे वो सर थे। तो जाते ही तो उन्होंने पूछा, मतलब जो मेरा सिविल इंजीनियरिंग से फाइनेंस से फिर स्टैटिस्टिक्स का जो था ट्रांजिशन, तो उसको मैं वो कंफर्म किए कि ये पाथ है या नहीं। फिर उन्होंने मेरे जॉब के बारे में पूछा कि व्हाट वाज माय प्रोफाइल और ड्यूटीज। फिर उन्होंने कहा कि एमबीए, मतलब आप जॉब के बाद एमबीए ना करके स्टैटिस्टिक्स में क्यों जा रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, मेरा जो है स्टैटिस्टिक्स में पहले से ही इंटरेस्ट था। इवन मैं अपने फ्री टाइम में पर्सनल एनालिसिस करता हूँ, जो खुद का एनालिसिस करता हूँ विच इन्वॉल्व्स स्टैटिस्टिक्स। तो वो सब यूज करके मैं खुद को इम्प्रूव भी किया हूँ। उसके अलावा जो है कि आईएसएस में जो होता है वो मैं दूसरों को हेल्प कर सकता हूँ। क्यों, ये एक ऐसा पोस्ट है जिसमें मैं पुअर और मिडिल क्लास लोगों को डायरेक्टली हेल्प कर सकता हूँ, जो कि आपका फाइनेंस में मतलब उतना डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और फिर ये तो चेयरमैन ने पूछा। फिर दूसरा जो था, मतलब एक मैम ने पूछा, वो मेरा सिविल इंजीनियरिंग के बाद फाइनेंस में जॉब क्यों किया। तो मैंने वो पूरा बता दिया कि लाइक कोर कंपनीज का ये मतलब नहीं आते हैं, तो उसी वजह से मैंने बाकी सारे कंपनीज में अप्लाई किया था और उसमें लग गया। फिर उन्होंने मैम ने स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड 6-7 क्वेश्चंस पूछे। उसमें से मतलब हाँ, काफी सारे क्वेश्चंस का मैंने सही आंसर दिया, 1-2 थोड़ा बहुत मतलब पार्शियली इनकरेक्ट भी दे दिया। उसके बाद जो थे और एक सर ने पूछा, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर और पुरी के बारे में पूछा, क्योंकि वो मेरा जो इंटरव्यू था इट वाज ऑन 20th जुलाई, जो कि रथ यात्रा का लास्ट डे था। तो मैंने एंटिसिपेट किया था कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे, और मैंने प्रिपेयर किया था और अच्छे से उसका आंसर भी दिया था। और उन्होंने फिर उसी से रिलेटेड श्री चैतन्य के बारे में भी पूछा। और फिर जो 4th मैडम थी, उन्होंने वो जगन्नाथ मंदिर के बारे में और थोड़ा पूछा। और फाइनली उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा कि व्हाट वाज माय व्यू ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने बता दिया इट इज ए गुड सर्वेंट एंड बैड मास्टर वाला, मतलब इन शॉर्ट ये बताया। तो उसके बाद फिर चेयरमैन ने
वॉल क्लॉक देखा और बोला योर मतलब योर इंटरव्यू इज ओवर। That's so nice. Okay, I have one question. I hope we can cover this question. एक question है कि जैसे do's and don'ts अगर हम कहें तो what would you say like 5 do's for UPSC preparation and 5 don'ts for UPSC preparation? हाँ तो फास्ट डूज का, हाँ फास्ट ये जो होता है कि आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, टेक फास्ट 1 or 2 month to gather as much information as you can about the examination pattern, कट ऑफ, ये सब वगैरह के, और सिलेबस, ये सब के बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए, और टॉपर्स के बारे में उसी टाइम ही आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि प्रिपेयर कंसिस्टेंटली, मतलब हर दिन आप 6-7 घंटे या 7-8 घंटे डेली पढ़िए, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि आप 3 दिन, मतलब 3 दिन 7-8 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले 2-3 दिन 1 घंटे पढ़ लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना चाहिए। बीच में 15 दिन में 1 दिन का गैप ले सकते हैं, अगर आपको लगे कि काफी ये है, मतलब काफी स्ट्रेसफुल हो गया है। और तीसरा ये है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2 टॉपिक्स साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। एक जो आपको इंटरेस्ट हो, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, और जो थोड़ा बोरिंग या डिफिकल्ट हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ बोरिंग टॉपिक्स एक ही बार में पढ़ रहे हो तो आपको डिमोटिवेट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो बेसिकली, और इसके अलावा जो आप पेशेंस होना चाहिए आपका, क्योंकि ये 2 और 3 स्टेप्स प्रोसेसेस होते हैं, ये आपका यूपीएससी एग्जाम, और 1 साल तक एग्जाम्स होते हैं, मतलब इसका तो आपको पेशेंट होना चाहिए। हमारा जो रिटन एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2020 में, और इंटरव्यू 9 महीने बाद हुआ था। तो आपको पूरा मतलब धैर्य रखना चाहिए उसी टाइम, पूरा प्रिपरेशन के टाइम में। और फिफ्थ है कि परसिवेरेंस एंड डेडिकेशन, मतलब आपका जो अगर फास्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आप आप पीछे मत हटिए, फिर और एक बार कंटिन्यू करिए, मतलब और विगर के साथ कंटिन्यू करिए प्रिपरेशन, और फुल डेडिकेशन होना चाहिए इसी टाइम। और ये तो 5 डूस हो गए। डोंट्स में एक है कि आप प्रिपरेशन के टाइम में जो डिमोटिवेट या आपको नीचा दिखाने वाले होते हैं ना, जनरली होते हैं, हर एक ग्रुप में 1-2 बंदे होते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहिए, उनसे मिनिमल कांटेक्ट रखिए, क्योंकि इन सब एग्जामिनेशंस में आपका मेंटल स्ट्रेंथ काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और इसके अलावा जो काफी लोग बोलते हैं कि यूपीएससी एग्जाम में आपको 12 से 13 घंटे पढ़ना चाहिए, मैं बोलूंगा कि आप ऐसा मत कीजिए। आप मैक्सिमम 10 आवर्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको 1-1.5 साल पूरा कंटिन्यूअस पढ़ना है। तो अगर आप 12-13 घंटा जो होता है वो सिर्फ एग्जाम के 1 महीने ही पॉसिबल होता है, लेकिन आप स्टार्टिंग से ही उतना पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो ये है एफिशिएंसी बाद में घट जाएगा वो। तो आप जो भी है स्टार्ट करिए 6 से 7 घंटा, इंक्रीज इट टू 9 to 10 आवर्स बिफोर द एग्जामिनेशन। और हाँ, और तीसरा है कि आप अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे फोकस कीजिए। मतलब हो सके तो आप योगा, मेडिटेशन या वॉक या कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं। ये डेली मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज होना चाहिए। और हाँ, और बीच बीच में आप एक बार अपना स्ट्रेटेजी बना लिए तो
फिर दोबारा आपका टॉपर स्ट्रेटेजी पे मत जाइए। एक बार आपने ठान लिया कि मुझे यही करना है तो उसी पे करिए, और आप अपने मेंटर से बात कर सकते हैं, लेकिन आप वो लेक्चर मतलब टॉपर्स के वीडियो पे दोबारा मत जाइए। ठीक है, यही है मेनली। That's amazing. I think we are nearly near the closing time. So I think one last request I will have, and I think that is something that सभी हमारे current scholars को बहुत interesting लगेगा. Can you repeat once again what was your daily routine, like दिनचर्या जो थी आपकी, जो आपने प्लान की थी, अगर वो आप हमसे शेयर करेंगे तो हमारे लिए सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वो। Okay, so I used to wake up at 7. हाँ। Okay, so मैं सुबह 7 बजे के करीब उठता था। Then I used to study for 2 hours, मतलब पहले तो 1 घंटा पढ़ लिया, फिर आपका ब्रश वगैरह ये सब कर लिया, फिर थोड़ा कुछ खाने के बाद फिर और 1 घंटा पढ़ता था, फिर 9:30 के करीब मैं मतलब नहाता था, और उसके बाद आपका 10 to 12 और 2 घंटा पढ़ता था। तो बिफोर लंच में 3 से 4 घंटा पढ़ता था। देन लंच के बाद जो है मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट लेता था। सो फ्रॉम 1 to 2 या कुछ भी, मतलब जो टीवी सीरीज वगैरह जो आधे घंटे का है वो देखता था। फिर 2 to 6 जो है उसमें मैं 3 घंटे का मतलब 3 घंटे का पढ़ता था, और उसमें स्नैक्स करता था, फिर देन आपका जो मेडिटेशन करता था, 15 मिनट्स का मेडिटेशन, और फिर 5:30 मतलब 2 to 5:30 ये सब मैं करता था, और 5:30 to 7 जो था वो थोड़ा लीजर टाइम था मेरा। मतलब उसी टाइम में क्रिकेट खेलने जाता था, या दोस्तों से बात करने जाता था, या आपका सोशल मीडिया में एक्टिव रहता था, मतलब जो भी कुछ भी हो रहा है करंट अफेयर्स ये सब देखता था। फिर आपका 7 to 8 और 1 घंटा पढ़ता था। देन 8:15 to 8:45 के करीब मेरा ये होता था, डिनर होता था। देन आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 2 hours फ्रॉम 9 to 11, और फिर 11 to 11:30 मैं सोने से पहले एक बार एक बुक रीड करता था, और 11:30 to 11:45 के बीच में सो जाता था मैं। सो आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 7 hours, कंटिन्यूअस 7 hours वो था मेरा। तो और पढ़ाई भी लगभग 8 to 9 hours था। That's amazing. I mean, I think you have broken all the myths कि all the time पढ़ाई करना चाहिए, right? But आपने जो बताया उसमें बहुत interesting चीजें ये हैं कि you can balance your studies and your fun time, your free time. You can relax also. Very nice. Thank you so much. Thank you. Okay, so I think we've covered most of our questions. Like I said, हम आपका email ID देंगे chat box में, और सभी से share करेंगे। अगर किसी को और भी कोई questions होंगे तो वो जरूर आपसे पूछ सकेंगे, मतलब आपको लिखेंगे। I hope you don't mind that. No, that would be fine. और एक बात बताना है कि मैंने अपने ISS स्ट्रेटेजी के बारे में अपने ब्लॉग पे भी लिखा है, तो मैं आपको वो लिंक शेयर कर देता हूँ। Please, that will be wonderful. That will be great because बाद में भी it will be useful for people to refer to. बहुत अच्छा होगा. Yes. I have given detailed tips and strategy specifically for ISS exam. तो वो बाकी UPSC एग्जाम्स के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। Wonderful, wonderful. So thank you so much, Sujit, for taking out the time today. आप जानते नहीं आपने कितनी मोटिवेशन दी है हम सभी के लिए, and once again you make us feel so proud of you that I have no words actually to express it.
when I have seen you, जब से आप स्कूल में थे, फिर मैं IIT खड़गपुर में भी आपसे मिली थी, फिर क्रिसिल में जब आप मतलब थे तभी भी हमारा इंटरेक्शन हुआ था. Then at IIT Bombay. So I've seen how you have been focused, and I think that is the key to your success of being focused and working hard. So congratulations once again, and thank you very much for taking this time. And from all of us at Dakshina, we wish you all the very best for your future. And we know, I'm not going to say we hope, I'm going to say that we know you will be in touch with us, and you will always be available to all Dakshina alums and scholars whenever, right? So Yes, ma'am. Thank you, ma'am, and thank you everyone at Dakshina Foundation and all the DAN members. Thank you. Thank you for giving me this honor. You deserve it, totally. Thank you. Thank you. So thank you everyone else for being here today. I hope we've been able to answer most of your questions. Sujit has been very kind to allow us to use his email address to ask any more questions that we might have. And I'm sure the blog that he's going to share the link of is also going to be very useful for all of us. Well, when we sign off, a very big thank you to our current scholars for taking out your time and being here. Wishing you all the best for your preparation, and all the best to all the alums also from me. Thank you. Thank you for being here. Good evening. Thank you, everyone.